Hello, I am audible. Yes, sir. So you hear me? Okay. The screen is visible, beta. Screen is visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. From the last lectures, I will be discussed. I have discussed, I think, to design the Mealy and Murray machine. If I recall, then it is true, no? I think in the first lecture, I have discussed what is the finite automata, DFA and DFA. Then after that, convert NDFA to FA. After that, what is the Mealy and Murray machine? What is the finite state machines? And then designing of Mealy and Murray machine. Am I right? Hello? Hello? हेलो Yes, sir. बेटा रिस्पॉन्ड तो करो आप लोग ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो Yes, sir. तो आप लोग रिस्पॉन्ड तो करिए एंड आई ऑलरेडी गिव यू क्वेश्चंस डिजाइन अ Murray machine which determine the residue mod 4 of any given binary string that represents a number you have done मैं पहला क्वेश्चंस कराया था आपको क्या residue mod 4 you have done it बेटा अमन आदित्य आनंद आदित्य यस सर। आपने किया इस क्वेश्चन को सर मॉड्यूलस 3 वाला करवाए थे सर आप। तो मॉडुलस 3 वाला मैंने करवाया था और मॉडुलस 4 का मैंने आज होमवर्क दिया था कि आप कर लीजिएगा तो किया था नहीं किया था आपने नो सर। सर क्यों समझ में कैसे नहीं आया था मुझे, और मेले मशीन फिर से समझा दीजिए। अच्छा मीले मोरे मशीन समझ में नहीं आया था नो सर। चलिए मीले मोरे से स्टार्ट कर देता हूँ हमने कहा था when finite automata gives an output then that type of finite automata is known as the finite state machine yes it is of two types one is the Moore machine and second is the Mealy machine in the Moore machine output depends
only on the present state. And the Mealy machine output depends on both input and state. So in the Murray machine, output depends only on the present state, and in the Mealy machine, output depends on both input and present state. Clear बेटा? So हमने कहा था as a definition in the Murray machine, you can say that let for any instant of time let xt represent as input, qt represent as present state, and zdt represent as output. Then in the Murray machine, you can say that this zdt, that bit output, is directly proportional to the present state, this present state. So you can say that zdt is directly proportional to the qt. So we can say that this zdt equal to lambda qt. In the Mealy machine, this zdt is directly proportional to the qt and xt. That is, output depends on the both input and present state. So this zdt equal to lambda qt and xt. This zdt equal to, sorry, it is equal to lambda qt xt. लाइट ही नहीं यार दिखाई, लाइट नहीं दिख रही ना, हाँ? लाइट नहीं आ रही। So as a definition, wait खोलो बेटा, you can define, हाँ थोड़ा बहुत ठीक रहने दो। In the Murray machine,
you can define M equal to Q sigma delta Q naught lambda and del, where capital Q is the finite non-empty set of states, sigma is a finite non-empty set of input alphabet, delta is a transition function, Q naught is the initial state, lambda is the output transition function, and del is the output alphabet. Q is a finite non-empty set of states. Sigma is a finite non-empty set of input alphabet. Delta is a transition function because a definite DFA, so it is defined by Q cross sigma into capital Q. Q naught is the initial state. Lambda is the output transition function. That is in the Moore machine, output depends on only on present state. So Q into del. That means it depends only on the present state. And del is the output alphabet. In the Mealy machine, it is defined by Q, sigma, delta, Q naught, and F. Sorry, F. Lambda and del. It is defined by state tuple. The only difference is lambda. That means in the Mealy machine, output depends on both input and present state. So here, Q output is defined by Q into sigma into del. That means output depends on both input and present states. So in the last lecture, पहला क्वेश्चन था we have done already done it. Design a Moore machine which determine the residue mod 3. आदित्य यस सर। अब देखिए बेटा, आपने देखा पहले कि डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है. देयर इज ओनली वन डिफरेंस इन द लैम्डा, दैट इज द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन. In the Moore machine, output depends only on the present state, and in the Mealy machine, output depends on both input and present state. Clear? Yes sir। So here we want to design a Moore machine to determine the residue mod 3. That means you want to find the remainder Yes sir। of any number which is divided by 3. But you want to design a Moore machine, that means output does not depends on the input. That means without knowing what is the input, you can directly say that this is an output. That means output doesn't depends on the input. Clear? So that means अगर इसको हम स्टार्ट करें डिजाइन, तो अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 1 2। 0 1 2. That means there are 3 states for 0, Q naught for 0, and Q1 for 1, and Q2 for 2. Clear? There are 3 states, Q naught, Q1 and Q2. Q naught for 0 remainder, Q1 for 1 remainder, and Q2 for 2 remainder. Clear? तो हमने इसमें क्या किया था, हमने कहा था अगर if don't know anything, that means for hit and trial, we simply take a number, some numbers 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ज्यादा लिए थे. आनंद Yes, sir.
ओनली 9 स्टूडेंट्स आर हेयर, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है क्या? आनंद, Yes, sir. you write a zero in binary form. It is repeated ट्रिपल जीरो. 1 क्या हो जाएगा? 0 0 1. 2 क्या होगा? 0 1 0. 3 क्या होगा? साथ में चलिए आनंद, एक 3 को बताइए. 0 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 5 1 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1. क्लियर. अच्छा, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 2, अगेन रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 2, अगेन रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 1. क्लियर बेटा? Yes, sir. हम स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज इनिशियल स्टेट, क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट. सो फॉर 0 देयर दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0. दैट मींस हमें कहां रहना है? क्यू नॉट स्टेट पर रहना. तो 0 0 मींस यू कैन से दैट इट इज अ 0 0 0 0 0 में हम क्यू नॉट पर रहेंगे. सेकेंड टर्म क्या है? 0 1 1. कहां आपको जाना, कहां है? स्टे कहां करना? क्यू नॉट पर ही. तो इट इज 0 एंड दिस इनपुट इज 1 एंड दिस इनपुट इज अगेन 1. 0 1 1 कहां पहुंच गए? क्यू नॉट पर. चलिए ठीक है. इसके लिए सेकेंड हमारा ट्रायल क्या है? 1 0 1 1 0. तो दिस इज 1, दिस इज अगेन 1 फॉर दिस वन एंड दिस वन एंड दिस 0. दैट मीन्स 1 1 0. अगेन क्यू नॉट पर रह गए. बेटा ये ठीक है आपको? आदित्य, यस सर. यहां तक ठीक है ना? यस सर. कोई प्रॉब्लम? नो सर. चलिए 1 के लिए स्टार्ट करते हैं. 1 पे हमारा कहां पर है? 0 0 1 और हमारा है 1 0 0 और ट्रिपल 1 पे 0 है. तो इसका मतलब हमारा क्या है? 0 0 1. दैट मीन्स 0 0 1 Q1 पर आ रहे हैं. फिर हमारा 0 1 1 नहीं, फिर हमारा है 0 1 1. तो दिस 0 1 हमारा आ रहा है 1 0 0. तो दिस इज 1 एंड दिस इज 0 और अगेन दिस 0, दिस 0. फिर क्या हमारा 0 1 1 0. तो 1 1 नहीं, ट्रिपल 1. तो 1 1 1 Q1 पर आ रहा है. मतलब तीनों पे 0 0 1 हो या 1 0 0 हो या ट्रिपल 1 हो, आप Q1 पर आ रहे हैं. आयुष्मान, आयुष्मान यस सर. क्लियर है? हाँ सर. यस सर. अच्छा, 2 के लिए क्या है आपका? 0 1 0. दैट मीन्स 0 1 0 2 पर ही जा रहे हैं. फिर 2 कहां पर है? 1 0 1. तो 1 0 1 का ऑप्शन है, तो हमने क्या कर दिया? Q2 पर ही सेल्फ लूप दे दिया. इट बिकम द 1 0 1. क्योंकि इट इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन है, डीएफए है. दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ ट्रांजिशन फॉर ईच एंड एवरी इनपुट. तो हम देख रहे हैं क्यू नॉट पर 0 के लिए भी ट्रांजिशन है, 1 के लिए ट्रांजिशन है. वेरी गुड. Q1 पर भी 0 के लिए ट्रांजिशन है, 1 के लिए ट्रांजिशन है. अगेन इट्स गुड. एंड Q2 पर भी 0 के लिए भी है और 1 के लिए भी है. दैट मीन्स ऑल द स्टेट कंटेनिंग ट्रांजिशन फॉर बोथ इनपुट 0 and 1. So it is a finite state machine which determines the residue mod 3 of any given numbers. And here it does not depends, output does not depends on the input. That means you can predict the output without knowing what is the input. For example, Nandini, Nandini, Yes, sir. take any numbers. Take any number.
Let any number, let it is the Sir, I'm not 14. able to listen you. Let a number is 42. I am audible? No, sir. I am not audible. But Sir, Ayushman, I am audible? Yes, sir. Nandani, I am audible, beta. Let a number 42. You can represent 42 into the binary form. Represent 42 into the binary. Represent 42 in the binary. What is the value? Kumar Singh. Kumar Singh. Yes, sir. What is the value of 42 in binary form? Tell me a binary string. Wait, sir. Sir, 101010. 101010. Clear, beta? And if you Yes, sir. divide the, it's correct. Yes, sir. Yes. Yes. Acha, when you divide the 42 by 3, what is the value of remainder? 0, sir. It's 0. Very good. That means without knowing this value, you can say that what number you pass in this transition diagram, but it is divisible by 3. Knowing that 1, for example, 1, 0. That means when input is 1, it transit. Explain ही कर देते पूरा. देखिए इसको explain करने जा रहा है बेटा. It's delta Q naught 101010. That means the first time it machine is at state Q naught when input is 1. It transit from Q naught to, बोलिए बेटा डायग्राम देख के बताइए कहाँ जा रहे हैं. Q naught to Q1. That means it is equal to delta Q1. Input is 0 1 0 1 0. Again next time when input state is Q1 and input is 0, it transit to Q2. Oh, very good. Q2 1 0 1 0. State is Q2, input is 1, it transit to Q2. Again Q2 0 1 0. State is Q2, input is 0, it transit to Q1 1 0. State is Q1, input is 1, it transit to Q naught comma 0. And state is Q naught and input is 0, it is equal to Q naught. And it represents the remainder is 0. आदित्य है चले गए. Yes, sir. It represents the remainder is 0. क्लियर बेटा? Yeah. That means Yes, sir. आपने क्या नंबर पास किया है उससे मतलब नहीं. आप स्टेज को देख के बता देंगे कि आपने जो भी नंबर पास किया है but that particular number is divisible by 3. क्लियर बेटा? Yes, sir. That means in the Moore machine, output does not depends on the input. Output depends only on the present state. फिर हमने कहा था for the conversion of Mealy machine, I am already said that the output depends on both input and present state. तो simply हमने इसको convert कर दिया था. Let at the state Q naught when input is 0, output is 0. इसको हमने represent किया Q naught, input is 0 and output is 0. Secondly, at stage Q naught when input is 1, then output is 1. Q1 पर आ गए. When input is 0, output is 2. Output is 2. And when input is 1, output is 0. At stage Q2, when input is 0, output is 1. And when input is 1, output is 2.
That means this Moore machine is converted into a milling machine. इसको हमने ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया था. लेट इट इज फॉर स्टेट इनपुट. Input is 0 and 1. State is initial state is Q naught, Q1 and Q2. There are 3 states. अगर उस ट्रांजिशन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन टेबल में तो देखिए ऐसे आएगा Q naught, Q1, Q2, Q naught, Q1 and Q2. कन्वर्ट करिए बेटा. Convert this transition diagram into the table, and you can find this is this transition table. Rahul, Yes, sir. Rahul, yes, you Yes, you sir. can find. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, there is a some logic when you see this particular table. That means Q naught, Q1, Q2, Q naught, Q1, Q2. This Q naught, Q1 and Q2, Q naught, Q1, Q2. ठीक है, हमने एक सर्किल ड्रा किया. अगेन क्या है? Q naught, Q1, Q2. दिख रहा बेटा दोनों? That means there is a Q naught, Q1, Q2, Q naught, Q1, Q2. फिर हमने जब होमवर्क दिया था कि डिजाइन मोरे मशीन was determine residue mod 4. इसमें क्या था आपका? There is a state input 0 and 1. कितने रिमाइंडर होंगे? There are 3 reminders. Q naught, Q1, Q2 and Q4. Q3 बेटा. 0, 1, 2, 3. Input is 0 and 1. So simply हो जाएगा there is a Q naught, Q1, Q2, Q3, Q naught, Q1, Q2 and Q3. This is a Moore machine which determines the residue mod 4 of any given number. आदित्य, आदित्य, यस सर. समझ में आ रहा है? यस सर. क्या समझ में आया बेटा? सर वही कि ये इनपुट पे डिपेंड नहीं करता और फिर उसका प्रेजेंट स्टेट से डायरेक्टली डिसाइड कर लेंगे. वही कर रहे थे सर क्वेश्चन. ये आपने मशीन जो क्यों हमने मॉड 4 के लिए डिजाइन किया है, ये समझ में आया आपको? यस सर. अच्छा, इसको बेटा अभी क्या करेगा, जो हमने डायरेक्टली टेबल बना दिया है लॉजिक से, बट इसको आप बाइनरी नंबर्स लीजिएगा, इसको कन्वर्ट करिएगा, फिर आप स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है ना? ओके सर. ठीक है ना? बट टेबल एक बन के आएगी, टेबल जो है आपकी बन के आएगी, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए ओके ठीक है. सर. ट्रांसफॉर्मिंग Moore to Mealy machine बेटा. In the Moore machine,
This is the Moore machine, and we want to convert this Moore machine into the Mealy machine. So here in the Moore machine, here you see that the output is depend only on the present state. That means output is written according to the present state Q0, Q1, Q2, and 3. That means what is the output of Q0? It is 0. What is the output at Q1? Output is 1. At stage Q2, output is 0. At stage Q3, output is 0. But in the Mealy machine, output depends on both input and present state. So this table will transform into the state, input, output. State, input, output. Q0, Q1, Q2, Q3, Q3, Q1, Q2, Q3, Q1. The output region as input is 0 and input is 1. That means I state Q0, input is 0, next state is Q3 and output is according to Q3. This Q3, output is written according to this Q3. Then what is the output is Q3? The output of Q3 is 0. So it becomes it is 0. And Q1 input is 0. Next state is Q1. Output at Q1 is 1. So it becomes the 1. Q2, next state is Q2. Output at Q2 is 0. So this becomes the 0. Q3, input is 0. Next state is Q3. Output at Q3 is 0. So it becomes the 0. At input 1, at state Q0, input is 1. Next state is Q1. And output as Q1 is 1. So this one becomes this, that output as Q1 is 1. Again, present state is Q1, input is 1, next state is Q2. Output is at the next stage, Q2 is 0, so it becomes the 0. At the stage Q2, input is 1. Next stage is Q3 and output at Q3 0, so it becomes the 0. When present state is Q3, input is 1. Next state is Q0, output as Q0 is 0, so it becomes the 0. Aman? यस सर. क्लियर बेटा? नहीं सर, क्लियर नहीं हो रहा. अच्छा नहीं, एक बार बेटा आप आन रहिए कि मैं दिखाई नहीं दे रहा. इसमें बेटा क्या किया हमने, जो आपने मूरे मशीन लिया है, इसमें हमने क्या किया है, जो आउटपुट है इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टेट. दैट मीन्स द आउटपुट एज Q0 is 1, output as Q1 is 1. Q1 is 1, very good. Q2 0. Q3 0. क्लियर बेटा ना. इसका मतलब आप मूले मशीन में क्या है कि आपको इनपुट आउटपुट स्टेट रिगार्डिंग आउटपुट पड़ता है. Q0 पर 0 है, Q1 पर 1 है, Q2 पर 0 है, Q3 पर 0. इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको मीली मशीन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जैसे अभी आपने ऊपर किया था. मीली मशीन में क्या होगा कि आउटपुट करेगा इनपुट और स्टेट दोनों पर डिपेंड करेगा. हमने सिमिलरली क्या किया, उस टेबल को ब्रेक कर दिया है. Q0, Q1, Q2, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 0 एंड इनपुट 1 के लिए वही है जो मूरे मशीन में लिखी हुई है. क्लियर? ओके सर. अब हमें क्या फिलअप करना था, आउटपुट कॉलम में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंग आउटपुट को फिलअप किया गया है. जैसे एट स्टेट Q0, नेक्स्ट इनपुट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज Q3.
जब नेक्स्ट स्टेट पर है तो आउटपुट का देखा जाए नेक्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अभी आप टॉप डायग्राम में जाइए तो हमने आउटपुट जो यहाँ पर लिखा है बेटा इस फिगर पे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आउटपुट किसके अकॉर्डिंग लिखा गया है? जब Q0 पर है इनपुट 1 है, नेक्स्ट स्टेट Q1 है, तो हमने क्या लिखा 1/1, दैट मीन्स आउटपुट इज 1। क्लियर बेटा? यस सिमिलर वे में यहाँ भी है, जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो अगर स्टेट Q0 पर है यस और हमारा इनपुट 0 है, आउटपुट नेक्स्ट स्टेट Q3 है, तो आउटपुट इज रिटन एज करस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट स्टेट दैट Q3। तो Q3 का आउटपुट कितना है? 0 0। सो इट फिल अप दिस वैल्यू विल बिकम द 0। क्लियर बेटा? यस सर सिमिलर वे में अब आके हमने फिलअप किया। फॉर एग्जांपल एट Q1 इनपुट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज Q1 एंड आउटपुट ऑफ Q1 इज 1 सो इसलिए दिस बिकम द 1। क्लियर बेटा? यस सर अब क्लियर हो गया? यस सर यस आदित्य यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। अब बेटा चाहे आप इस तरीके से कन्वर्ट करिए या मैंने जो डायग्राम का तरीका बताया आपको जो भी सही लगे, ये भी तरीका, ये टेबल का तरीका है, या आप इसको फॉलो करिए या उस तरीके को फॉलो करिए। These two methods basically are used to convert the Moore machine into the Mealy machine। आपको जो सही लगता है उसको फॉलो करिए, दोनों ही सही है। क्लियर बेटा? Yes, नेक्स्ट sir. इज कन्वर्ट Mealy machine to Moore machine। This is a Mealy machine। Here we want to convert this Mealy machine into the Moore machine। Here we see that the output for Q1 is 1, again Q1 is 1, no problem। For stage Q1 output is 1, but at stage Q2 we see that here at stage Q2 output is 1 and here output is 0। That means there are two outputs for same state, first time it is 1 and second time it is 0। Again for Q3 output is 0, again here Q3 output no problem, but Q4 one time output is 0 and one time output is 1। So there are two states Q2 and Q4 where output is varies, one time it is 0 and second time it is 1।
And when we want to convert this Mealy machine into the Murray machine, where output depends only on the project state, that means when you see the states, you can predict their output. So when we convert Mealy machine to Murray machine, and when there is any state which provides two output for different input, then we simply break that states in two parts. For example, one state is Q1 and second stage is Q20 and Q21. That means first state Q20 means the output is 0 and Q21 means output is 1. Similarly, Q3 provides a single output, no problem. But Q4 provides two outputs, so we break Q4 0 and Q4 1. We simply break this. This is the initial state. Transition is similar. It is Q3 0, Q2 0, Q2 0. Same transition, but here Q2 0 means Q2 0. This is 0 output वाला Q2 है. Q2 0 में क्या है? Q1 1. Q1 को ब्रेक नहीं किया तो Q1 1. Q4 मतलब Q4 0 0. This is 0 output वाली Q4 है. Again Q2 1 में कॉमन रहेगा Q1 1, Q4 0 0. Q3 में Q2 1. Q2 को हमने ब्रेक किया है. So that means Q2 1 1. Q1 0, Q2 1 1, Q1 0, and Q4 0 में क्या है? Q4 1. That means Q4 1 1 and Q3 0, Q3 0. And again हो जाएगा Q4 1 1 and Q3 0 0. आदित्य, यस सर. समझ में आ रहा बेटा क्या किया हमने? नो सर. नहीं समझ में आ रहा. देखिए बेटा हमने क्या किया है, when you convert a Mealy machine into Murray machine, in this particular problem, here you see that at this point, this हमने जहाँ लाइन खींची अंडरलाइन देखिए, Q1 gives one output, that is Q1 1 and Q1 1. Q1 provides always one output, but Q2 देखिए one times Q2 provides one output and second time Q2 provides 0 output. दिख रहा है बेटा? आदित्य, यस सर. अब बेटा अपनी आवाज ऑन रखो. देख Q1 में क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट Q2 आपका एक बार देखिए 1 आउटपुट है, एक बार 0 आउटपुट दिख रहा है. यस सर. ठीक है ना? इसका मतलब जब आप इस मीली मशीन को मुरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो मुरे मशीन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर एक जो मशीन है, इट आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनपुट. मतलब आप उसकी स्टेट को देख के आउटपुट बता सकते हैं. यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि 1 टाइम्स आउटपुट इज 0, सेकेंड टाइम आउटपुट इज 1. हमने क्या किया, इसको सिंपल ब्रेक कर दिया बेटा दो पार्ट में. जैसे Q2 0 मीन्स है 0 आउटपुट वाली स्टेट है, एंड Q2 1 मीन्स है 1 आउटपुट वाली स्टेट है. यस सर. हमने स्टार्ट किया तो हमने सिंपल लिखा, तो हमने क्या किया, Q2 को ब्रेक कर दिया है, Q2 0 एंड Q2 1. अच्छा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ Q2 0 बेटा? सर Q2 0. व्हाट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ Q2 0? सर कि 1 कैसे होगा बेटा? हमने Q2 0 दिया ही 0 के लिए, तो Q2 0 एक ऐसी स्टेट है जिसको बिना आंख बंद के बताए आउटपुट इसका हमेशा 0 होगा. भाई Q2 0 आप कौन सी स्टेट है जिसको आपने आउटपुट क्या कर दिया, जिसका 0 होगा. ऐसे सिमिलरली के Q2 1 का आउटपुट क्या है? 1. ऐसे Q4 0 का आउटपुट कितना है? सर 0. Q4 1 का आउटपुट कितना है? सर 1. अच्छा, Q1 का आउटपुट क्या है बेटा? सर 0. अरे 0 कहाँ है?
Q1 देखिए ना इस टेबल में, Q1 का आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, 1। देखिए Q1 1 एंड Q1 1, देखिए हमेशा 1 आ रहा नहीं आ रहा, ओके देखा सर। बेटा, ठीक है ना। और Q बचा गया Q3 का आउटपुट क्या है हमेशा, सर 0 आ रहा है। 0। इसका मतलब आपके देखिए सबका आउटपुट था है। अब हम फिर बोल रहे हैं Q1 का आउटपुट क्या है, सर 1 है। Q2 0 का, सर 0। Q2 1 का, सर 1 है। Q3 का, 0। Q4 0 का, सर 0। Q4 1 का। 1। मतलब आपको पता चल गया कि इस स्टेट का ये आउटपुट है ना, दिख रहा है ना आपको। हम यस इसी सर। डायरेक्शन में जा रहे हैं ना कि मीली टू मूरे जा रहे हैं, मूरे स्टेट में क्या है कि स्टेट को देख के ही आउटपुट पता होना चाहिए। क्लियर। हमने क्या किया, यस सिंपली सर। ब्रेक कर दिया बेटा। अब देखिए हमने कैसे ब्रेक किया, जब ट्रांजिशन लिखने लगे हैं तो जब जैसे हमने लिखा कि देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, देखा जो Q2 है कितना आउटपुट है इसका, 0। तो हमें खुद ही पता है कि 0 आउटपुट वाली Q2 है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, Q2 0 0 लिखा मैंने। इसका मतलब ये क्या होगा, Q2 0 होगा, क्योंकि इसका आउटपुट क्या है, 0 है। क्लियर बेटा। यस सर। सिमिलरली इस तरह हमने किया हुआ है यहाँ पर देखिए, जैसे Q4 0 है तो इसका मतलब आउटपुट 0 है, इसका Q4 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Q4 का आउटपुट 1 है तो उसका नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया Q4 1 1। यस सर। क्लियर ना बेटा। अब यस यहाँ तक सर। आपको टेबल में कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं। अब देखिए हम फिर बेटा बना रहे हैं, जैसे आपने कहा Q1 Q2 0, Q1 Q2 0 एंड Q2 1, Q3 Q4 0, Q4 1। ये स्टेट हो गए बेटा। क्लियर है ना। यस। यस अब सर। आप यस। बीच में जो ट्रांजिशन है वो आप लिख लीजिएगा, दिस इज द 0, नेक्स्ट स्टेट आप लिख लीजिएगा 1, नेक्स्ट स्टेट लिख लीजिएगा जो आपको ऊपर डायग्राम में दिया है। आउटपुट क्या होगा ये आप बताइए, आउटपुट इधर भरना बचा। Q1 का आउटपुट क्या है बेटा, सर वन है। सर Q1 का क्या आउटपुट क्या है, सर 0 है। Q1 अच्छा का 1 है। 1। 0 है, 1 है, ठीक है ना। Q2 1। 0 क्या होगा, सर 0। वेरी गुड। Q2 0 का हो गया 0, और Q2 1 का 1 है ना। 1। चलिए चलिए Q2 1 हो गया, Q2 Q3 का सर 0। 0 हो गया। चलो चल रहा है। अच्छा इसके बाद Q4 0 का 0, Q4 1 का 1, ठीक है ना। यस सर। अब आपने क्या किया, आउटपुट लिख लिया। अब आप इसमें जो ट्रांजिशन डायग्राम बीच में है इसको आप फिलअप कर दीजिए। इसको करने क्या हो जाए, Q3 Q1 Q1 Q2 1 जो भी है आपका, Q4 1 एंड Q4 1। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा Q2 0, Q4 0, Q4 0, Q1 Q3 एंड Q3 जो भी, मतलब बीच में आपको वही भर देना सिंपली। क्लियर बेटा। तो दिस इज अ मूरे मशीन इक्विवेलेंट टू गिवन मीली मशीन। बेटा किसी कोई कंफ्यूजन, आयुष्मान गुप्ता यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा। यस सर, ऊपर वाला मैं जो मिली मशीन टू मोरे मशीन में थोड़ा कंफ्यूजन था। मीली टू ये मुरे वाला तो समझ चल रहा में है आ बेटा, गया। ये तो मीली टू मुरे यही तो है बेटा। नहीं सर, मोरे टू मिली। मोरे टू मिली ऊपर वाले में। हाँ सर, ऊपर वाले अ, में। अ, यहाँ बेटा। हाँ सर। तो ये सर ट्रांजिशन टेबल वाला, मतलब उससे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहा बेटा, ट्रांजिशन टेबल से नहीं कर पा रहा। नहीं सर। मूरे में देखिए बेटा क्या किया हमने, जैसे यहाँ जाइए फिर से देखिए क्यू, अब इसमें तो कुछ करने नहीं बेटा। देखिए Q0 पर आउटपुट क्या है, 0 दिख रहा है ना बेटा। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। Q1 पे क्या है, 1, Q2 पे कितना, 0, Q3 पे कितना, 0 बेटा। क्लियर ना। यस सर। अब देखिए हम कुछ नहीं करना, Q0 पे आपने क्या कहा, 0 कहा ना बेटा। यस सर। तो जहां जहां Q0 है उसके सामने 0 लिख दो। जैसे ये देखिए Q0 है, इसके सामने 0 लिख देना बस। Q1 पर क्या है, 1, तो जहां जहां Q1 है, जैसे यहाँ पर Q1 है देखिए, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ 1 हाँ लिखा सर। जाएगा। यहाँ Q1 है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा।
समझ गया समझ गया। अब समझ में आ गया ना बेटा? यस बस सर यस। लिखने का तरीका चेंज है बेटा, और कुछ नहीं है। हम्म। चलिए बेटा, आप दोनों एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम मिनिमाइजेशन बताएंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। क्लियर बेटा? कुछ क्वेश्चन ओके सर। केएलपी मिश्रा में है, और उसमें जो भी आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करिएगा बेटा, क्योंकि अभी आप भूल जाएंगे, मैंने बहुत ऐसे ही लिखा शॉर्टकट में। एक क्वेश्चन आप बुक को देख के सही से सॉल्व करिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन ओके होगा सर। तो मंडे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?